Hello, very good morning to everyone, and welcome to the last class of the chapter. Today, we are going to complete the chapter along with all the queries, doubts. Yeah, so 5-6 minutes before, if you can come online, we can chat about your doubts. थोड़ा पहले यदि हम लोग आते हैं तो जो अभी जैसे हम लोग सभी आपस में बात कर रहे थे, we can talk about the doubts. ताकि मैं उसी को ही अपने लाइव सेशन में फिर डिस्कस भी कर सकता हूँ. एनीवे, सो वाज द फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट क्लियर टू यू? Was the first and second part, was the discussion clear to you? यदि कॉम्प्रिहेंशन चेक का क्वेश्चन आंसर आप कर पाए हो, मतलब चैप्टर वाज ओके फॉर यू, या फिर ये डिस्कशन इस तरह से मेरा लाइव आना आप लोगों के लिए फायदेमंद रहा? चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग प्रेम एंड वेलकम. फाइन. तो कुछ सवालों से शुरू करेंगे एज यूजुअल, जैसा अक्सर किया करता हूँ. और इस बार का सवाल फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट से भी होगा, और थर्ड पार्ट शुरू करने से पहले मैं थर्ड पार्ट का कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा. राइट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. We got to know in the discussion yesterday that a football match was being played between the two enemy nations, right? Between the two enemy nations. So tell me who won the match and by how many goals? Okay, very good, Aditi Jaiswal. You have solved all the questions, and send me the photos if you have written that in the notebook. Send me the click. चलिए, क्वेश्चन था टू एनिमी नेशंस में जो फुटबॉल मैच हुआ उसमें कौन कितने गोल से जीता? एग्जैक्टली, राइटली आंसर्ड करण, राइटली आंसर्ड. विपिन कुमार में क्या नाम बताए थे? सोनल, राइट? Let me have a look. Yeah, Sonal, fine. Okay, Germany won the match by 2-1. है ना, जर्मनी ने मैच जीता था 2-1 से, इंग्लैंड 1. Okay, very good. And the common German name used in the chapter. Very quick. पहले का 5-7 मिनट हम लोग ये प्रीवियस डिस्कशन को चेक कर लेंगे, प्रीवियस नॉलेज को चेक कर लेंगे, and then we will move on. The common German name used in the chapter. Krishna, no. Tommy English वालों के लिए था. The common English name was Tommy. Common German name, German वालों के लिए common नाम कौन सा यूज किया गया था? Yeah, fridge. Exactly. F-R-I-T-Z. Okay, Sonal, your spelling is a bit wrong. सही कर लेंगे. F-R-I-T-Z. Fine. Fridge is the common German name. Okay. Next, yeah, Anushka has also joined, I think. Fine. So if you have heard or read the chapter, definitely I would expect answer from you too. Okay. Fine. Definitely you might have heard, because we are talking about the discussion of 10th one. So shall I call you Anushka or Fruity? Okay, the next question to you. Tell me the address of Mrs. Macpherson. Where was Mrs. Macpherson? All right, fine, Fruity. Where was Mrs. Macpherson? Means Connie Macpherson used to live. Tell me the address. The address which the letter was addressed to. Exactly. Aditi, Dorset, Bridport is the correct name. And Dorset से थे वो, means Jim Macpherson belonged to Dorset, is clear. So the exact address, or the address which the letter was addressed to, जिस address पे letter लिखा गया था, that was
या ब्रेड पॉट, 12 copper beaches, copper beaches था ना, 12 copper beaches, bread pot. Exactly. Fine. So this question is not being talked about in the previous classes. पिछले दो क्लास में अभी जो पूछूंगा ये नहीं बताया गया था. The question is, how old is Connie MacPherson? When the narrator met Connie MacPherson, how old was she? Exactly, rightly, Tanya. The first one to answer. Aditi next. 101. 101 years old. Isn't it? So she was at the extreme old age, crossed a century. Very good. Okay, moving on. Yes. So German and the English both were the enemy nations. They had trenched themselves against each other on either sides of a no man's land, right? And Jim McPherson was at the battlefield. Final question before I begin the third part. Final question to you. What was Jim's and Hans Wolf's profession before they became the soldiers? What Jim and Hans Wolf used to do before they became the soldier or before they joined the army? Last question. I'll move to the third part, and there are again number of questions. Exactly. Teacher and musician, respectively. Means Jim McPherson, the one who I named first, was a teacher, and Hans Wolf, the German head there, was the musician, and he used to play cello in an orchestra. Yeah, exactly. So, correctly answered. टीचर एंड म्यूजिशियन. जिम मैकपर्सन एक टीचर थे, हैंस वुल्फ एक म्यूजिशियन थे. फाइन. सो सेकंड पार्ट में काफ़ी अच्छी बातें आई हैं. दे वर एक्सपेक्टिंग दैट fight would not take place, and if they are fighting just to declare their win or loss, then football match is the better option. यदि हार और जीत ही घोषित करना है लड़के तो फुटबॉल मैच सही है. नो ह्यूमन लॉस विल बी देयर, राइट? क्योंकि सबका अपना परिवार है, मरना कोई नहीं चाहता. एंड अबव ऑल, दे डू नॉट हैव पर्सनल एनिमिटी बिटवीन देमसेल्व्स. आपस में तो कोई पर्सनल दुश्मनी थी नहीं, है ना, लेकिन फिर भी एक दूसरे को मारना है या अपने देश के लिए मरना है. सो वट एवर द रीजन इज, बट this war takes number of life, means war ultimately results in disaster. वॉर का नतीजा हमेशा डिजास्टर ही होता है. एनीवन, सो ऑल आर आंसरिंग करेक्टली. तो अब मैं थोड़ा आगे का द स्टडी मटेरियल आई हैड गिवन यू, जस्ट 3 पेजेस वर देयर, और 3 पेज भी पूरा नहीं था. सो होपिंग दैट यू ऑल हैव स्टडीड, देयर आर सम क्वेश्चंस. आई विल कम टू दीज ऑल थिंग्स. मैं सभी पार्ट्स पे वर्ड बाय वर्ड पैराग्राफ रीडिंग करते हुए हम लोग पूरा कर लेंगे इन दिस फाइनल क्लास, बट देयर आर सम क्वेश्चंस. तो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने आंसर दिया, हाउ ओल्ड वाज कॉनी. Now the second question, ये तो part का question है, isn't it? Where did the narrator find Mrs. MacPherson? वो 12 copper beaches गए, Bridport में जो है 12 copper beaches Bridport, but Connie MacPherson was not there. So where did the narrator find her? Connie MacPherson कहाँ मिले narrator को? वो जगह बता दो, बिल्डिंग बता दो या एड्रेस बता दो. जिन्होंने पढ़ा है वही आंसर दे पाओगे, ये थर्ड पार्ट वाला, क्योंकि अभी मैं इन सभी बातों पे चर्चा करूंगा. Exactly. So Aditi again, first one to answer, in Burlington nursing home. Exactly. Nursing home में थी अभी वो, Burlington में. Fine. So the next question again from the third part. This time the narrator, when he reached at the address, जब वो address पे पहुंचे,
ब्रिक पॉट के लेटर में जो एड्रेस लिखा हुआ था वहां पे पहुंचे. ही फाउंड द हाउस इन डिजास्टर. सो व्हाट हैड हैपेंड टू द हाउस. घर को क्या हुआ था. नर्सिंग होम में हो सकता है वो बुढ़ापे की वजह से हो. इस उम्र में हर तरह की बीमारियां होती भी है. घर को क्या हुआ था. जब नरेटर उनके घर पे गए तो वो घर पे मिले नहीं. फिर एक पड़ोसी से पूछना पड़ा. एंड दैट जेंटलमैन, एग्जैक्टली, फायर लगा था, मतलब आग लगी थी. राइट. तो देखिए यहाँ पे अब कंफ्यूजन क्लियर होता है. एक जो कल के डिस्कशन के लास्ट में मैंने कुछ बातें बताई थी उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन थर्ड पार्ट पढ़ने के बाद हो जाएगा. राइट. तो जैसे हम लोगों ने अंदाजा लगाया था दैट द रोल टॉप डेस्क विच द नरेटर परचेज्ड फ्रॉम द जंक शॉप वाज बर्न्ड. और अभी यहाँ पे हमें एक हिंट मिला कि कॉनी मैकपर्सन के घर में आग लगी थी. मतलब वो रोल टॉप डेस्क कॉनी के घर से ही गया वहां पे जंक शॉप में. इधर इट. क्योंकि हम लोग बस अंदाजा लगाए थे कि मैं वो तो नहीं पहुंचा, मीन्स जिम मैक पर्सन तो घर नहीं पहुंचा. उनका लेटर पहुंचा होगा या नहीं ये हमें पता नहीं था. और हो सकता है एक्सप्लोजन से भी आग लगती है तो उनके एग्जैक्ट पोस्ट पे जहाँ पे वो ऑन ड्यूटी थे वहां पे आग लगा और वहां से रोल टॉप डेस्क पहुंचा. बट यहाँ पे उसका करेक्शन है क्योंकि यहाँ पे क्लियर कर दिया गया मैटर, है ना, कि लेटर घर पे पहुंचा. बिकॉज इन द कॉन्वर्सेशन बिटवीन जिम सॉरी मिसेस मैकपर्सन एंड द नरेटर वी विल बी वेरी क्लियर, एकदम अच्छे से पता चल जाएगा दैट द लेटर हैज रीच्ड कॉनी. एंड इन द लेटर इट वाज मेंशन्ड, लेटर में लिखा था ना कि अगला क्रिसमस हम साथ में मनाएंगे. क्योंकि दोनों देशों वालों में से कोई भी लड़ना नहीं चाहता है. नो वन वांट्स टू फाइट. सो द वॉर इज गोइंग टू एंड वेरी सून. वी विल हैव पीस एंड द नेक्स्ट क्रिसमस वी विल एंजॉय टुगेदर. बट वो अगला क्रिसमस का दिन कभी कॉनी के लाइफ में आया ही नहीं क्योंकि जिम मैकपर्सन कभी घर वापस आए नहीं. तो उनका लेटर पहुंचा. लेटर कॉनी बहुत ही संभाल के सीक्रेट ड्रॉयर में रखी थी. सीक्रेट ड्रॉयर के अंदर एक टिन बॉक्स के अंदर वो लेटर. फिर कॉनी के घर में आग लगी. आग कैसे लगी ये पता नहीं चला. बट अनुमान है दैट पॉसिबली इट माइट हैव ड्यू टू कैंडल, मोमबत्ती से आग लगी होगी. ऐसा लोगों का मानना है क्योंकि बताते हैं कि उनके फैमिली मेंबर्स में और कोई है नहीं. कॉनी अकेली थी और वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम यूज करती थी. फायर सॉरी कैंडल यूज करती थी. फायर बोल रहा हूँ. तो बता सकते हो क्यों. द रीजन इज मेंशन्ड इन द टेक्स्ट. टेक्स्ट में रीजन दिया हुआ है. सी वॉज नॉट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी मच बट द कैंडल. वाई. चलिए फिर हम लोग टेक्स्ट वाइज जाएंगे. आंसर मी फास्ट. जो पढ़े हो उनसे तो आंसर उम्मीद है. कृष्णा आंसर दोगे. अदिति, तान्या. या एग्जैक्टली. सो टू हर, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी वाज एक्सपेंसिव. या एग्जैक्टली. बिकॉज सी थिंक्स दैट इलेक्ट्रिसिटी वुड बी टू एक्सपेंसिव, महंगा पड़ जाएगा, है ना. और हाँ आतिश बर्नवाल फायर लगा. हाँ फायर लगा. आप शायद थोड़ा पीछे चल रहे हो. लाइव वाले में आगे स्लाइड करो. लाइव का आंसर दे दो. पीछे वाला फिर से रिपीट कर लेना. बाद में रिप्ले देख लेना. या सी कंसिडर्ड इलेक्ट्रिसिटी टू बी टू एक्सपेंसिव. इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा इसीलिए कैंडल ही यूज़ करती थी. और उस उम्र में याददाश्त भी धीरे धीरे कम होता रहता है. 101. यू कैन इमेजिन अभी शायद ही हम लोग जिंदा रह पाएंगे, है ना. तो कैसे लगा आग एग्जैक्टली पता नहीं बट एक अंदाजा लगाया गया कि मोमबत्ती से लगी होगी क्योंकि वो मोमबत्ती ज़्यादा यूज़ करती थी. और पूरा जल जाने के बाद यदि किसी वुडन पे या फिर किसी पेपर पे रखा हुआ है देन डेफिनेटली इट विल कैच फायर. ओके. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. टेक्स्ट वाइज हम लोग देखेंगे मामला क्या है. और बहुत लंबा नहीं है तो हम लोग अच्छे से पढ़ के पूरा कर सकते हैं, कुछ मिस ना हो जाए इसीलिए. तो सेकंड पार्ट में हमने जाना था पूरा लेटर का कंटेंट. वो फुटबॉल मैच, उनका सेलिब्रेशन, क्रिसमस कैरल एंड अ प्रॉमिस टू रिटर्न होम बाय द नेक्स्ट क्रिसमस, isn't it? सो हियर कम्स द थर्ड पार्ट. आपके पास यदि बुक है तो आप जरूर देखना और एल्स लिसन मी, है ना. और सुनते समय मेरे रीडिंग को भी आप लोग करेक्ट कर सकते हो. यू हैव गॉट ऑल द राइट टू डू सो.
See what it says. Third part. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. I kept awake all night. By morning, I knew what I had to do. I drove into Bridport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. House number 12 turned to be turned out to be nothing but a burned out shell. So the narrator drove, गाड़ी चला के वो गए. It was not so far away, कुछ मील की ही दूरी थी. And the narrator asked a boy where this copper beaches house number 12 is. 12 copper beaches, 12 क्या है house number है. And the boy showed him the house, showed the narrator the house, and it was nothing but a burned out shell. जैसे कुछ जल के खत्म होने के बाद जो रिमेन्स हाउसेस बच जाता है, बस वही बचा हुआ था. मीन्स इट वाज इन डिलैपिडेटेड कंडीशन, इट वाज इन वर्स कंडीशन, कंप्लीटली बर्न्ड आउट, जल चुका था वो पूरी तरह से. द रूफ गेपिंग, हाँ, GAPING, इसको आप गैपिंग भी पढ़ सकते हो, गेपिंग भी पढ़ सकते हो. गैप और गेप, GAP गैप होता है मतलब फासला होना, फर्क होना. GAPE गेप का मतलब कोई बताओगे मुझे, क्योंकि मैंने यहाँ पे गैपिंग नहीं पढ़ा, मैंने यहाँ पे गेपिंग पढ़ा. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेपिंग? द रूफ वाज गेपिंग. एनीवन, इफ यू कुड आंसर, इफ नॉट आई एम देयर टू आंसर. रूफ नहीं था, राइटली ओपन, वेरी गुड. सो गेपिंग का मतलब होता है ओपन माउथ, खुला सा रह जाना, है ना. आश्चर्य में कभी कभी हम लोग भी, हमारा मुंह भी खुला सा रह जाता है. सो दिस ओपन माउथ को हम लोग गेपिंग बोलेंगे. सो इट वाज ओपन, रूफलेस, जैसे आग जलने की वजह से पूरा रूफ ही खत्म हो गया हो. सो इट वाज गेपिंग मतलब पूरा खुला सा था, open mouth. The windows boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. Macpherson. बड़ा अच्छा वर्ड है whereabouts, है ना, कोई कहाँ पे है ना, whereabouts. So पड़ोसी के घर के दरवाजा खटखटाया उन्होंने एंड पूछा about the whereabouts of Mrs. Macpherson, कि Mrs. Macpherson कहाँ मिलेंगी. Oh yes, said the old man in his slippers. He knew her well, a lovely old lady. He told me, a bit muddle-headed. Muddle-headed मतलब होता है थोड़ा confused minded, है ना, क्योंकि उस उम्र में थोड़ा forgetful हो जाते हैं, कोई भी हो जाएगा, हम लोग भी होने वाले हैं. Okay. लेटर पार्ट ऑफ आवर सेकंड इनिंग्स में. सो वो भी थोड़ा मडल हेडेड, कंफ्यूज सी थी. बट एट हर एज शी वाज एंटाइटल्ड टू बी, वाजंट शी, 101 ईयर्स ओल्ड. तो यहीं पे पता चला एट हर एज, कोई भी इस अवस्था में चला ही जाएगा. शी वाज 101 ईयर्स ओल्ड, 101. She had been in the house where it caught fire. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. So this was the assumption. ये अंदाजा था, guess, अनुमान लगा रहे हैं कि आग कैसे लगी, किसी को नहीं पता. But possibly ये आग candles से लगी होगी. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The fireman had got her out just in time. She was in a nursing home now, he told me. Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town, the other side of the town. तो देखिए यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. अभी वो कहाँ पे है? बर्लिंगटन हाउस, नर्सिंग होम, डॉर्चेस्टर रोड में, है ना, टाउन के ठीक दूसरे तरफ डॉर्चेस्टर रोड, बर्लिंगटन के एक नर्सिंग होम में है. आग कैसे लगी थी? पॉसिबली, ये बस अंदाजा ही लगाया गया है, पॉसिबली ड्यू टू कैंडल, है ना. और वो कैंडल क्यों यूज किया करते थे? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उनको महंगा लगता था. सी फाइंड्स इलेक्ट्रिसिटी expensive. So this is what the happening of the means short paragraph is. अब इसमें दो क्वेश्चन है. Why did the author go to Bridport? शॉर्ट में आंसर दोगे कैसे? Why did the author go to Bridport? एकदम शॉर्ट में आंसर देना, एक फ्रेज में भी आप बता सकते हैं. चलो बी क्विक. Why did the author go to Bridport? Yeah, the author went to Bridport. Yeah, correct tense to answer. Question में did है तो आंसर में हम लोग went लगाएंगे. Very good Aditi, very good. The author went to Bridport to give the letter to Connie Macpherson. So exactly he had been there. He went there to deliver the letter. Letter देने के लिए गए थे. Question number 2.
How old was Mrs. Macpherson now? Where was she? ये तो ऑलरेडी पूछ लिया मैंने. How old was she? 101. And where was she now? She was in a nursing home at Burlington on Dorchester Road. ये था ना? Exactly. So we had already answered these questions. Fine. Burlington Nursing Home, 101 years old. Yeah, moving on to the further paragraph. I found Burlington House Nursing Home easily enough. There were paper chains up in the hallway. In a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on top. लॉपसाइडेड मतलब होता है जो प्रॉपर बैलेंस ना होना, एक तरफ लटका सा होना, इसको लॉपसाइडेड बोलेंगे. अब देखिए नर्सिंग होम में जब वो गए तो पता चलेगा इन्हीं सभी हैपनिंग से कि क्रिसमस के आसपास का समय है, क्योंकि अभी भी पेपर चेन हम लोग बनाते हैं ना, पेपर का डेकोरेशन से चेन जैसा कुछ. सो पेपर चेन अभी भी वहां पे लटका हुआ था. क्रिसमस ट्री वाज देयर प्लेस्ड है ना, क्रिसमस ट्री अभी भी लगा हुआ है. और ये भी है कि 25 दिसंबर के बाद उसे हटा नहीं देते, तो क्रिसमस के आगे पीछे का टाइम ये क्लियर होगा. तो फाइनली नरेटर जो एड्रेस मिला था वो पहुंचे, नर्सिंग होम पहुंचे, और वहां पे देखिए वो मिले किससे. I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. Yeah, to bring her a Christmas present. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. The Christmas time ही था, ये वहाँ पे गए, इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने बताया I am a friend of Mrs. Macpherson and I am here with a gift for her. उनके लिए गिफ्ट लेके आया. तो उन्होंने देखा कि डाइनिंग रूम में बाहर से जो उनको दिख पा रहा था है ना, पर्सन्स वेयर देयर विद ए हैट. अब डाइनिंग रूम में जो काम करते हैं, शेफ वाला टोपी जैसा लगा हुआ रहता है, वो भी हो सकता है. एंड दे वर सिंगिंग, दे वर एंजॉयिंग, दे वर मेकिंग मैरी ना. तो सभी खुश थे, गाना गा रहे थे. द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी. मैट्रन वहाँ की जो हेड थी है ना, इंचार्ज बोल सकते हैं. तो इंचार्ज भी टोपी लगाई हुई थी, वो भी गाना गा रही थी, और बहुत खुश हुई जब उन्होंने देखा कि अच्छा मिसेस मैकपर्सन से कोई मिलने आया. बिकॉज सो फार नो वन हैज एवर विजिटेड हर, नो वन हैज एवर कम टू मीट हर. उनसे मिलने कोई अब तक आए नहीं थे. फैमिली मेंबर कोई है नहीं, जिम मैकपर्सन था और वो भी शायद बैटल फील्ड में शहीद हो गया हो, है ना. और जिम मैकपर्सन ने अपने बच्चों का भी जिक्र किया नहीं, तो हो सकता है नहीं थे, तब नहीं थे. एनीवे मूविंग ऑन. तो देखिए अब वो हॉस्पिटल पहुंच गए, मीन्स नर्सिंग होम पहुंच गए. मैट्रन से बात हुई, उन्होंने खुद को इंट्रोड्यूस किया, बताया कि मैं उनका एक दोस्त हूँ और उनके लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ. तो ये बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट क्या है ये आप बताओगे अभी. दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू. व्हाट वाज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट जिसके नाम पे ये चैप्टर पढ़ा. वाज द लेटर द क्रिसमस गिफ्ट और वाज द पर्सन क्रिसमस गिफ्ट. व्हाट डू यू थिंक. बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट क्या है, वो लेटर है या फिर वह इंसान जो है आया है वहां पे उनसे मिलने, वो है. आपको क्या लगता है. क्लियर कर लेंगे हम लोग एट द एंड. नो, लेटर वाज नॉट द क्रिसमस गिफ्ट. लेटर नहीं था, या द पर्सन वाज द क्रिसमस गिफ्ट. तानिया यू आर राइट. सो सॉरी, सोनल इज देयर. Exactly, Aditya Surya. Okay, student from BPS. Very good and welcome. Again, you have got the opportunity to listen me. Yeah, so this was the confusion. जैसे आप लोग लिख रहे हो, कोई लेटर बता रहे हो, कोई पर्सन बता रहे हो. This is the confusion I want to clear. Letter she had already received. कॉनी को तो लेटर पहले ही मिल चुका था, वो लेटर पढ़ भी ली थी, है ना. तो लेटर उनका बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट यहाँ पे नहीं है, वो इंसान है. और वो इंसान क्यों, यहाँ पे भी मिस्टेकन आइडेंटिटी हुआ है. आई विल लेट यू नो, आई विल मेक यू क्लियर. Yeah, exactly, Aditi, very good. Connie Macpherson thought that the visitor was her husband. His husband नहीं, her husband बोलेंगे, जिम. तो उनको लगा कि ये बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट है. क्यों, अब बताते हैं. लेटर जो 26 दिसंबर 1914 को लिखा है ना, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, दैट वाज ऑलरेडी डिलीवर्ड टू कॉनी. कॉनी को लेटर मिल चुका.
कॉनी लेटर पढ़ी और लेटर के लास्ट में जो लिखा था कि हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं, नेक्स्ट क्रिसमस, अगला क्रिसमस हम लोग साथ में मनाएंगे, वो दिन कभी नहीं आया. So this time when the man came with the letter in his hand, Connie Macpherson thought that the person means the narrator, वो जो आदमी आया हुआ है, Connie ने सोचा that the man is her husband Jim. तो थोड़ा वो सदमे में थी और फॉरगेटफुल भी हो जाते हैं 101 ईयर्स ओल्ड में, 101 साल यदि एज हो जाए तो, है ना. सो दिस वाज, ये कंफ्यूजन को क्लियर कर लेना है. लेटर वाज, हम सेकंड पार्ट के लास्ट में मैंने पॉसिबली बताया था दैट द लेटर वाज हर गिफ्ट, क्योंकि तब हमें अंदाजा ही लगा रहे थे हम कि वो मिला होगा या नहीं. मींस आई वाज नोइंग द थर्ड पार्ट बट आई डिडंट रिवील द फैक्ट्स देयर. एनीवे, सो नाउ द कंफ्यूजन इज क्लियर. क्लियर है. द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट वाज द मैन हु वाज मिसअंडरस्टूड. Mistaken identity यहाँ पे दिखेगा. Who was misunderstood as Jim Macpherson by Connie Macpherson. Connie thought that the man was her husband. ओके okay, तो कंफ्यूजन क्लियर हुआ. यहाँ पे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट लेटर नहीं है, वो इंसान है. तो अब वो पहुंचे हॉस्पिटल, isn't it, with the letter. See what the further conversation is, how it goes on. Mrs. Macpherson is not in with the others. With the others means they were enjoying, they were happy, having their happy time, and Mrs. Macpherson is not in with the others. दूसरों के साथ अंदर नहीं है. एक वर्ड मिलेगा कंजर्वेटरी. कंजर्वेटरी जहाँ पे हम लोग किसी चीज को कंजर्व करते हैं, मतलब प्रिजर्व करके रखते हैं, है ना, उसे कंजर्वेटरी बोलते हैं. So Mrs. Macpherson was there in the conservatory. वहाँ पे बहुत सारा plants हो रहे, जैसे ये ग्रीन हाउस, वो जो ग्लास बनाते हैं वहाँ पे पेड़ पौधे को उगाते हैं, सब्जी को उगाते हैं, क्या बोलते हैं उसे? ग्रीन हाउस रूम, ग्रीन हाउस इफेक्ट. What was the thing? Okay, I'm not getting it exactly. Let me know if you can. फाइन, उसे भी कंजर्वेटरी बोलते हैं. सो व्हाट शी मीन टू से, मतलब मैटर जो बता रही है कि वो औरों के साथ अंदर नहीं है, सी इज एट अ डिफरेंट प्लेस, सी इज एट अ कंजर्वेटरी. सो द मैट्रन हैज गाइडेड हिम टू द प्लेस. नहीं, नर्सरी में तो उगाते हैं, छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, लेकिन ठंड प्रदेशों में वो जो ग्लास का एक चैम्बर सा बना, चारों तरफ कांच का रहता है, उसमें ठंड प्रदेशों में जो सब्जी उब्जी उगाया जाता है, क्या बोलते हैं उसे? ग्रीन हाउस. चलो बताना बताना मुझे, नहीं तो ये बेचैन करेगा. ओके, हाँ, या फिर याद आ जाएगा द एग्जैक्ट टर्म. तो अब मैट्रन नरेटर को उनके कंजर्वेटरी में, जहाँ पे मिसेस मैकपर्सन बैठी हुई है, वहाँ पे लेके गए. अब देखिए दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन कैसा होता है. ग्रीन हाउस, हाँ, ग्रीन हाउस तो पता है क्या मतलब. ग्रीन हाउस के आगे भी कुछ है, ग्रीन हाउस रूम, ग्रीन हाउस चैम्बर, ऐसा कुछ. कोल्ड स्टोर नहीं, कोल्ड स्टोर नहीं है, इट्स नॉट कोल्ड स्टोर. उगाए जाते हैं वहाँ पे ठंड प्रदेशों में, सर्बियन नेशंस में. ऑलराइट, फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं, मिल जाएगा ये. So she took me into a conservatory with a wicker chair and potted plants all around and left me. तो वहाँ पे देखिए wicker chair, wicker का मतलब होता है something the flexible twigs. वो टहनी या पेड़ पौधे के स्टेम्स जो होते हैं फ्लेक्सिबल, उसे बताया. तो चारों तरफ पॉट्स वगैरह रखा हुआ था, फिर प्लांट्स लगे हुए थे. ओके, तो वहाँ पे मैट्रन उनको लेके गए एंड लेफ्ट हिम देयर, छोड़ दिया. अब बस दो आपस में वहाँ पे बातें कर रहे हैं. अब देखिए क्या सब बात हुआ, उनका कॉन्वर्सेशन कैसा गया. द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप. शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड विद अ विस्पी बन. विस्पी बन, बन तो हम लोग समझते हैं खोपा बोलते हैं जिसे, एक बंडल सा बनाना. तो बालों को अच्छे से बन बनाया हुआ था. व्हील चेयर पे बैठी हुई थी, बहुत ही बूढ़ी, wrinkles, skins वगैरह झूल रहे होंगे. 101 years we can imagine, correct? So she was gazing out at the garden. Gazing मतलब होता है staring, staring, है ना, to look continuously. तो बाहर वो गार्डन में देख रही थी. Hello, I said.
पहुंचे, इनका इंट्रोडक्शन हुआ। अब देखिए कॉन्वर्सेशन कैसा होता है। हेलो आई सेड, सी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। वैकेंटली जैसे कुछ याद आ रहा है, कुछ नहीं भी है, पता नहीं चल रहा है कौन है, एकदम वैकेंट, जीरो। तो वैकेंटली उनकी तरफ देख रहे थी, ये देख रही थी मिसेस मैकपर्सन। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट इज़ योर्स। तो हाथों में वो लेटर लिए हुए थे, उनको विश किया, है ना। देखिए ये मोमेंट काफ़ी प्यारा सा, इनोसेंट सा है। उन्होंने वो लेटर उनको देते हुए बोला, हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई थिंक इट इज़ योर्स, ये लेटर आपका है तो मैं आपको देने आया हूँ, और मेरी क्रिसमस भी विश किया। As I was speaking, her eyes never left my face. I opened the tin box and gave it to her. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. So he was talking, he was taking, he was opening the tin box. उन्होंने वो बक्सा खोला, लेटर निकाला, but she was continuously looking at his face. उसके चेहरे को ही देखे जा रही थी एकटक, जैसे कुछ भूल सी गई हो, याद आ रहा हो, या फिर वो उस चेहरे में किसी अपने को ढूंढ रही हो। तो इन्होंने जब तक ये लेटर निकाला, दिया, तब तक वो लगातार उसे देखे ही जा रही थी। ओके, सो व्हाट हैड हैपेंड देयर व्हेन ही गेव हर द लेटर, तब अचानक से जैसे लगा कि इन्होंने मुझे पहचान लिया, मीन्स मिसेस कॉनी, मिसेस मैकपर्सन ने नरेटर को पहचान लिया। एंड द फेस लिट अप विथ ग्लो, और खुशी से जैसे उनका चेहरा एकदम ग्लो से जगमगा उठा, चेहरे पे एक रोशनी थी। Okay, that was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening. तो इन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया कि कैसे उनको ये चिट्ठी मिली, वो रोल टॉप डेस्क मिला जंक शॉप में, एंड हाउ ही गेट द लेटर, एड्रेस देखा, फिर वहाँ पे लेके आए। उनको लगा कि ये लेटर शायद इनको नहीं मिला होगा, इसलिए पहुँचा देते हैं, क्योंकि बातें कुछ इमोशनल, बातें कुछ बेहतरीन उस लेटर में लिखी थी, और किसी अपने का लेटर है तो उनको मिलना ही चाहिए। तो ये इंसानियत दिखाया नरेटर ने। चलिए मूविंग टू द फाइनल पेज। सी सेड नथिंग बट stroked the letter tenderly with her fingertip. Stroke is the past tense of strike, hit करना, जैसे वो पकड़ लिया अपने फिंगर टिप से, कुछ भी नहीं बोली। Suddenly she reached out and took my hand, तो थोड़ा she reached out, हाथ आगे बढ़ा के इनके हाथों को पकड़ा, ओके, एंड took my hand। देखो फाइनल उनका जो मोमेंट था वो कैसे जाता है। took my hand. Her eyes were filled with tears. आँखों में आंसू थे, आंखें नम थी. You told me you would come home by Christmas, dearest, she said. This is the first statement she uttered. You told me, तुमने बताया था, मतलब वो चिट्ठी के जरिए ही तो बताए थे. So letter she had already read. तो चिट्ठी उन्होंने पहले ही पढ़ लिया है. So you told, तुम बोले थे कि तुम क्रिसमस तक आओगे, है ना, डियरेस्ट, एंड हियर यू आर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर डियर जिम, सिट डाउन। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लेना, इस कोटेशन को, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट सेड बाय हर। तो अब उसी उम्मीद भरी नज़र से उसे देख रहे थे, इसीलिए आंखों से आंसू भी आ गए कि ये क्रिसमस मेरा सबसे बेस्ट है, बिकॉज ही हैड प्रॉमिस, जिनने प्रॉमिस किया था लेटर में, दैट आई विल विजिट सून, है ना, बहुत जल्दी वो वापस आने वाले हैं, बट ही डिडंट कम, वो आया नहीं। सो दिस टाइम व्हेन मिसेस कॉनी कंसिडर्ड टुक द पर्सन टू बी जिम मैकपर्सन, टीयर्स रोल डाउन हर आईज, आंखों में आंसू आ गए उनके, ठीक है। सो कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। तो इस लाइन से पता चल रहा है कि बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट क्या था, इट वॉज द डियरेस्ट जिम, है ना, बोला यहाँ बैठो, नजदीक आओ, कम क्लोजर। आई सैट डाउन बिसाइड हर एंड सी किस्ड माई चिक, गालों पे किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, एवरी डे आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी। सो देयर सी सेड फर्दर, so she kissed her cheek, गालों में किस किया, और बताया कि मैं तुम्हारा लेटर लगभग हर दिन पढ़ा करता हूँ,
जैसे उस लेटर के ज़रिए इनको लगता है कि वो सामने में ही हैं और उनसे कुछ बातें कर रहे हैं, उनसे कुछ बता रहे हैं। सो लेटर कॉनी पढ़ चुकी है और बहुत बार पढ़ चुकी है। इस बार उनको यदि किसी का इंतज़ार था तो उनके हस्बैंड जिम का, और इस नरेटर को उन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया जिम से, राइट? तो देखिए फाइनल स्टेटमेंट अगेन, it always made me feel you were it always made me feel you were with me, and now you are back. You can read it to me yourself. Would you do that for me, Jim dear? So would you do that for me? तो मेरे लिए ये पढ़ोगे? Will you make me listen your voice this time? Because she has read the letter several times, but she wants her husband Jim to read this out for her, okay, so that she can listen his voice. इतने सालों से उनकी आवाज भी नहीं सुने, तो अब तुम आ ही गए हो, तो ये लेटर पढ़ोगे मेरे लिए? मुझे एक बार पढ़ के सुनाओ ये लेटर। ओके, सी सेड, would you do that for me, dear Jim? I just want to hear your voice again. I would love that so much. And then perhaps we will have some tea. So I would love that so much. तो ये मुझे बहुत पसंद आएगा if you would read this letter out to me. And then इसके बाद फिर हम दोनों मिलके चाय पियेंगे, है ना? We will have some tea. I have made a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipan. सब और उसके बाद हम लोग क्रिसमस केक केक सेलिब्रेट करेंगे। तो जिम को मार्जिपैन पसंद है, वो बैटलफील्ड में भी लेके गया था, जो हैंस वुल्फ के साथ उन्होंने शेयर किया। बोला पहले ये लेटर तुम मुझे पढ़ के सुनाओ, फिर हम दोनों मिलके चाय पिएंगे, और उसके बाद उनके लिए वो मार्जिपैन का केक बनाएंगे। सो मार्जिपैन एग्जैक्टली इज द ग्रेटेड आलमंड, उसमें अंडे वंडे मिला के जो केक बनाते हैं, तो दैट इज आलमंड को ग्रेट करके पीस के। So there came the final conversation. Okay, I know how much you love marzipan. तो तुम्हें marzipan तो बहुत पसंद है, तो उसका केक बनाएंगे और हम लोग फिर मिलके शेयर करेंगे, राइट? सो दैट वाज द फाइनल कॉन्वर्सेशन। तो यहाँ पे ये सभी बातें सुन के पॉसिबली नरेटर भी सेंसिटिव थे, तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए होंगे। अब वो उसे मिस्टेक कर रहे हैं, अपने हस्बैंड समझ के उनके साथ इतना बेहतर ट्रीट कर रहे हैं। यदि पता चले कि नहीं वो उनके हस्बैंड नहीं है, एक अननोन इंसान है, तो फिर उन पे क्या बीतेगा, हाउ ही माइट हैव रिएक्टेड, उन्होंने कैसा रिएक्ट किया होगा। सो दीज ऑल आर द थिंग्स वी कैन सिंपली इमेजिन। इट इज नॉट मेंशन, माइकल मार्पुल्गो ने इसे चैप्टर में मेंशन नहीं किया। सो देयर द चैप्टर एंड्स, द थर्ड पार्ट एंड द कंप्लीट चैप्टर। और उसके बाद फिर से देखिए कॉम्प्रिहेंशन चेक में दो क्वेश्चन है। यदि इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो बाकी का वर्किंग विद द टेक्स्ट में हमें कहीं पे भी परेशानी नहीं होगी, राइट? सो ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। द फर्स्ट वन इज, हु डिड कॉनी मैकपर्सन थिंक हर विजिटर वाज? क्लियर है, एक वर्ड में आप आंसर दे सकते हो। हु डिड कॉनी मैकपर्सन थिंक हर विजिटर वाज, या फिर पूरा सेंटेंस में आंसर दोगे तो सही टेंस का यूज करना। एग्जैक्टली, कॉनी मैकपर्सन थॉट, एग्जैक्टली क्वेश्चन में थिंक है, डिड के साथ सिंपल पास्ट, आंसर में थॉट लिखना है। थॉट हर विजिटर वाज हर हस्बैंड जिम, एग्जैक्टली, फाइन। हाँ कृष्णा कुमार, आई थिंक यू आर रनिंग लेट। पीछे के क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, एग्जैक्टली जिम मैक पर्सन नहीं। क्वेश्चन है सोनल की, उन्होंने क्या समझा, हु डिड कॉनी मैक पर्सन थिंक हर विजिटर वाज, विजिटर को उन्होंने क्या समझा? एग्जैक्टली हर हस्बैंड जिम मैक पर्सन। सेकेंड क्वेश्चन, which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? ऐसा कोई सेंटेंस आपको मिला टेक्स्ट में जिससे लगा कि विजिटर ने अपना आइडेंटिटी छुपाने का कोशिश नहीं किया? बताओ, if you could answer this question, which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? कौन सा ऐसा कोई सेंटेंस मिला आपको जिससे पता चले कि विजिटर ने अपना आइडेंटिटी नहीं छुपाया? चलो बी क्विक, if you could answer it, well and fine, or else I will suggest, I will tell you some of the places. No?
फाइन, क्योंकि इन दोनों के अब देखिए मैटर को समझते हैं। लास्ट का जो कॉन्वर्सेशन था मिसेस मैकपर्सन और नरेटर के बीच में, वहाँ पे एग्जैक्टली ऐसा उनके इंट्रोडक्शन में तो कुछ नहीं बताया है। उन्होंने बस मैरी क्रिसमस विश किया, ना तो अपना नाम बताया ना ही अपना परिचय दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ऐसा क्या था जिससे पता चल रहा है कि उसने अपना आइडेंटिटी नहीं छुपाया? सो लेटर ऑन आगे क्या कॉन्वर्सेशन हुई होगी, दिस टू वी डोंट नो। बट एक जगह है जहाँ पे उन्होंने मैट्रन को, मिसेस मैकपर्सन से तो बात उनके साथ कॉन्वर्सेशन में नहीं हुई, बट मैट्रन को उन्होंने बताया दैट आई एम हर फ्रेंड, उनका एक फ्रेंड करके खुद को इंट्रोड्यूस किया। तो वहाँ पे उन्होंने अपना नाम बताया होगा, राइट? Or else there is no other places in the conversation between Mrs. Macpherson and the narrator where he had introduced himself, or he had said that no, I am not your husband. क्योंकि बात तो हमें लास्ट तक मिसेस मैकपर्सन का मिला कि तुम मेरे लिए ये लेटर पढ़ो, फिर हम लोग चाय पियेंगे, फिर केक खाएंगे, क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। कहीं पे इस नरेटर ने विरोध करता हुआ तो नजर नहीं आया, है ना? तो मैट्रिन को जो इंट्रोडक्शन दिए थे उसी में हमने कुछ वैसा ही लिखना है, दैट ही टोल्ड द मैट्रन दैट he told the matron that he was one of her friends and not the husband. Okay, सो आगे देखिए, देर आर 7 मोर क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस भी यदि आपने सॉल्व किया है, यदि आपने एक बार भी पढ़ा है, आपको टफ लगा हो, सो लेट मी नो, अब बता दो मुझे यदि टफ लगा हो तो। अभी थोड़ा देखो एक्सटर्नल साउंड्स आना शुरू हो गए तो हमें रुकना पड़ेगा, और आप मुझे ऐसे इंडिविजुअली भी व्हाट्सएप कर सकते हो about the question that you failed to answer, or about the question that you didn't understand. Okay, so there the chapter ends, and let it be for the class. Next we will have a common discussion on grammar. I will send you the link, मैं लिंक पहले भेज दूंगा। अब 6 7 8 9 10 सभी के लिए कॉमन टेंस का प्लानिंग कर रहे हैं, तो कुछ दिनों तक वो चलेगा। पहले जिसका जो अधूरे में चैप्टर पड़ा हुआ है मैं उसे पूरा कर देता हूँ, राइट? चलिए, सो या लेट इट बी फॉर द डे, and next I will let you know about the further progress. But the homework and the task to you is, you must write the answers in the notebook. Okay, आप answers notebook में जरूर लिखना। Okay, thank you, have a good day.